Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today I am going to discuss the effects of insulin on fats and protein metabolism. But before that, one ayah from Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी इत्तबा करो। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब यह है कि इत्तबाए रसूल। फिर उसका नतीजा क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा यही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। वही मोहब्बत है। रसूल की मोहब्बत का भी मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we are going to talk about the effects of insulin on fats and protein metabolism. First, fat. One thing we discussed in the previous lecture, glucose entering into the liver can be converted into fat and it can be transported via VLDL to the adipose tissue and it will be deposited in the fats. That is also the effects of insulin on fat metabolism. Insulin is responsible for the storage of most of the nutrients, and same is true for the fats as well. That is, insulin promotes the fat storage in the fat cells. जब इंसुलिन मौजूद होगी, and insulin is present only when there is energy abundance, वो फिर स्टोर करने के लिए इंसुलिन काम आती है. इंसुलिन causes use of glucose for energy and fat is spared. एक काम तो ये है, in the presence of insulin फैट बच जाती है, ग्लूकोज इस्तेमाल होती है, मसल इज यूजिंग फैट फॉर द एनर्जी. लेकिन अगर इंसुलिन मौजूद होगी, फैट बच जाएगी, इट विल बी ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज. बाकी जगहों पे भी ऐसे ही है, फैट विल बी स्पेयर्ड and glucose will be utilized, so there is increased fat storage in the body. So insulin causes fatty acid synthesis in the liver cell, as we have seen fatty acid synthesis from acetyl CoA. This acetyl CoA is from any source. Either it is from the glycolysis and conversion pyruvate into converted into acetyl CoA, or it is from the fatty source, that is fatty acid. अगर टूट के fatty acid बने हुए हैं acetyl CoA, it can synthesize fatty acid in the liver from the glucose as well. And the insulin causes increased transport of glucose into the liver cell, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. And when the liver cell glucose level, glycogen storage level reaches to 5 to 6%, then the extra glucose will be converted into first pyruvate, that is Embden-Meyerhof pathway, breakdown of glucose to pyruvate, then pyruvate is converted into acetyl CoA, and this can be used. Acetyl CoA, 1 to 2 carbon, they will be joined together to form malonyl CoA and then a long chain fatty acid. आगे हम देखेंगे. So acetyl pyruvate will be converted into acetyl CoA. Acetyl CoA is converted into fatty acid. आगे हम देखते हैं. और ये हमने बात कर भी ली है पहले भी. Fatty acids are synthesized, they are incorporated in VLDL from the liver, and they are transported into the adipose cells where they are stored in the adipose cells. Insulin causes glycolysis. ये तो पहले हमने, ये ग्लूकोज वाला इफेक्ट है. It causes glycolysis, Embden-Meyerhof pathway, breakdown of glucose, and that may enter into citric acid cycle, and there is formation of citrate and isocitrate. ये तो Embden-Meyerhof sorry, Krebs cycle या citric acid cycle में there is formation of large amount of citrate and isocitrates, and these citrates and isocitrates are responsible for the activation of enzyme acetyl CoA carboxylase. ये हमने पिछली स्लाइड में जाए. Acetyl CoA has been formed from the glucose. पायरुवेट बन के, पायरुवेट से दो पायरुवेट बने हैं, दो पायरुवेट से दो एसिटाइल CoA बने हैं. ये एसिटाइल CoA फैटी एसिड में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं?
ये ग्लाइकोलिसिस जो हो रही है, दैट ग्लाइकोलिसिस में क्रेब्स साइकिल चल रहा है। क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आयंस आर फॉर्म्ड एंड दे स्टिमुलेट एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज क्या करती है? इट इज it is responsible for activation of acetyl CoA carboxylates and it is responsible for the conversion of acetyl CoA into malonyl CoA. First step toward the formation of fatty acids. एसिटाइल कोए से कैसे बनेगा? एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज बन के उसको और ऐड करेगी कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ long chain fatty acid. First step. So most of the fatty acids are synthesized in this fashion in the liver. लिवर में बनते हैं ज्यादातर फैटी एसिड, चाहे वो एसिटाइल कोए कहां से भी आ रहा हो, ग्लूकोज से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, फैटी एसिड आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर in this fashion. And then they are converted into triglyceride and incorporated in VLDL. This we have discussed in the previous lecture. ये वहां पे discuss, and they will be. अब इम्पोर्टेंट बात आई है, ये यहां तक की बात तो हमें समझ आई हुई है कि फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज एंड बन गए जी, ट्राइग्लिसराइड बन गए, VLDL में भी आ गए। अब एडिपोज सेल्स में क्या इसके साथ काम होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एरो नजर नहीं आ रहा, दिस इज इंक्रीज लिपोप्रोटीन लाइपेज कैपिलरी वॉल ऑफ द एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स की जो एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल की, कैपिलरी वॉल की, उसके अंदर एक एंजाइम है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज, उसको एक्टिवेट करती है इंसुलिन, उसको एक्टिवेट करती है। वो एक्टिवेट करेगी, ये VLDL की जो लिपिड ट्राइग्लिसराइड है उनको तोड़ेगी, जो हमने वहां किया था। इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में दाखिल नहीं हो सकती। इट इज द लिपोप्रोटीन लाइपेज इन द कैपिलरी वॉल ऑफ द एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल में कैपिलरी रन कर रही हैं, उनके एंडोथीलियम से ये पैदा होती है एंड इट कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ द लिपोप्रोटीन adipose tissue में and it converts the blood triglyceride into free fatty acid. उनसे ट्राइग्लिसराइड को तोड़ के फ्री फैटी एसिड बनाएगी। Those free fatty acid will be absorbed into the adipose tissue, वो दाखिल होंगे। न्यूट्रल फैट, ट्राइग्लिसराइड दाखिल नहीं हो सकती, लिपोप्रोटीन लाइपेज वहां पे एक्टिवेट होगी। किस वजह से? इंसुलिन की वजह से। So it will cause the reconversion of the those triglyceride into free fatty acid. Free fatty acid will enter into the blood and free fatty acid will enter into the adipose cells, वो दाखिल हो सकते हैं and they are reconverted into triglyceride. ये काम भी हम पिछले के साथ मिलाएं। Glycolysis in the adipose cells, this provides the alpha glycerophosphate nucleus, तब ग्लिसराइड बनेंगे। इंसुलिन वो भी प्रोवाइड करे, एडिपोज सेल के अंदर तो आ गए हैं, अब उसको रिकन्वर्ट करना है इनटू ट्राइग्लिसराइड, उसके लिए हमें न्यूक्लियस चाहिए अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट कहां से आएगा? वो ग्लाइकोलिसिस से आएगा। ग्लाइकोलिसिस कौन करेगा? इंसुलिन करेगी। तो इंसुलिन इस तरह भी हेल्प कर रही है। So glycolysis, alpha glycerophosphate, and there is deposition of the neutral fat or triglyceride in the adipose cell. हमारी बॉडी की एडिपोज जितनी भी फैट जमा हुई है इसी तरह जमा हुई है। So इंसुलिन, अच्छा ये नई बात आ गई। पिछली बात हमने इंपॉर्टेंट नई ऐड क्या की थी कि वो ये वाली लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी की बात की थी। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम आने लगा है, दैट इज इंसुलिन रिड्यूसेस, डिक्रीजेस द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंड इट कॉजेस reduces the hydrolysis of the triglyceride. ये खास बात है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इज प्रेजेंट इन एडिपोज सेल्स। नॉर्मली हमारी फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन कैसे होती है? दिस इज द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज व्हिच कॉजेस, दिस लाइपेज इज रिस्पांसिबल फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। ग्रोथ हार्मोन के साथ भी हमने जिक्र किया था और कार्टिसोल के साथ भी जिक्र किया था, mobilization of the fatty acid. This is the function of lipase. There is a special lipase which is known as hormone sensitive lipase. This is sensitive to hormone. Which hormone? और भी हार्मोन है, स्पेशली इंसुलिन। इंसुलिन की सेंसिटिविटी क्या है? जब इंसुलिन मौजूद होगी ये सो जाती है, इट इज इनहिबिटेड, इट इज रिड्यूस्ड
इट रिड्यूसेस द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। उसका रिजल्ट क्या होगा? मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैटी एसिड, ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रल फैट, दिस विल बी रिड्यूस डिपोजिशन। इंसुलिन की मौजूदगी में फैट इज डिपॉजिटेड। So insulin increases the transport of glycolysis, transport and glycolysis and fatty acid synthesis। ये तो बात हम पहले भी कर चुके हैं। That is insulin fatty acid synthesis भी करती है, उनकी storage करती है by all these means, by all these mechanisms। इंसुलिन इंक्रीजेस ग्लाइकोलिसिस, इट प्रोवाइड द अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट न्यूक्लियस, जो पिछली लेक्चर में भी किया था, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट टू प्रोवाइड द ग्लिसरॉल न्यूक्लियस फॉर द डिपोजिशन ऑफ दिस फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फैट, जमा होने के लिए काम करती है। सो इंसुलिन कॉजेस डिपोजिशन ऑफ द फैट्स, स्टोरेज ऑफ द फैट। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन की भी बात की थी, स्टोरेज ऑफ फैट भी कार करें। एनर्जी अबेंडेंस की हार्मोन है, ये पहली स्लाइड हमने यही कही थी। इट इज द हार्मोन व्हेन देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। फैट्स भी अवेलेबल है, अमाइनो एसिड भी अवेलेबल है और ग्लूकोज भी अवेलेबल है। इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अब आया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये डायबिटीज है। दिस इज इंसुलिन की डेफिशिएंसी इज डायबिटीज। इसको यहां पे क्यों जिक्र कर रहे हैं? इसको फंक्शन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम डायबिटीज समझ सकें। हमने फंक्शन अभी डिस्कस कर लिए। इट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ, लेकिन इसका एब्सेंट इज हैज गॉट ग्रेव इफेक्ट ऑन दिस। एब्सेंस ऑफ दिस ऑन द कार्बोहाइड्रेट, उसका इफेक्ट वो हाइपरग्लाइसीमिया ही है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो दिस 120 से ज्यादा हो जाएगी, 150 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। 300 हो जाए, 400 हो जाए, 1200 तक भी नोटेड है। इतनी ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए, उसका रिजल्ट क्या होगा? ग्लूकोज सारी ब्लड में पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं हो रही। यूरिन में लॉट ऑफ ग्लूकोज, एक पूरी चश्मा लगा हुआ है ग्लूकोज का। ग्लूकोज इज बीइंग लॉस्ट इन द यूरिन, यही है। और उसके साथ वाटर भी लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है। ग्लूकोज लॉस हो रहा है और वाटर लॉस हो रहा है। उसका रिजल्ट क्या है कि डायबिटिक आदमी पानी पी कर, डिहाइड्रेशन को तो वो पानी से ठीक कर लेगा। ग्लूकोज का लॉस है और ग्लूकोज खाता रहेगा और चीजें खाता रहेगा, कमजोर होता रहेगा। बस ये ग्रेव इफेक्ट इसके हैं, वो भी ग्रेव, अच्छे खासे ग्रेव इफेक्ट हैं डिहाइड्रेशन। लेकिन हम अभी देखेंगे कि दिस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन causes very grave effect on the fat metabolism, और वो डेंजरस है। इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड फैट मेटाबॉलिज्म। डिक्रीज इंसुलिन causes वो, ये जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की बात की थी ना, विच इज सेंसिटिव टू इंसुलिन। इंसुलिन उसको दबा के रखती है, नो उसको काम नहीं करने देती। इंसुलिन नहीं होगी तो वो ओवर एक्टिव है, वो फ्री हो जाती है, आजाद हो जाती है। आजाद होके वो फिर क्या करती है? दैट कॉजेज एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स, excessive mobilization of the fatty acid, increase free fatty acid level in the blood, and these fatty acids are utilized in beta oxidation, excessive utilization of the fat। इसलिए आपने देखा होगा डायबिटिक लोग अगर प्रॉपर ट्रीट ना हो, जो अच्छे खासे मोटे होते हैं, अगर उनकी ट्रीटमेंट ना हो तो सारी फैट खत्म हो जाती है। होता ही है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन स्टिमुलेट्स दैट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जब स्टिमुलेट होगी, दैट विल कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, or it will cause the mobilization of the fatty acid, it will increase the free fatty acid level in the blood, and these fatty acid will be utilized in beta oxidation। fatty acid will be utilized in beta oxidation। ये हमने ग्रोथ हार्मोन में भी पढ़ा था। दैट इज जब भी फैटी एसिड मोबिलाइज होंगे, दे आर इजीली अवेलेबल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बीटा ऑक्सीडेशन होती है। सो दे विल एंटर इन बाय कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर विल बी बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ओके, एनर्जी मिल रही है, लेकिन उसका खतरा क्या है? ग्रोथ हार्मोन के साथ भी हमने देखा था एक्सेसिव बीटा ऑक्सीडेशन। सो इंसुलिन डेफिशिएंसी causes more conversion of fatty acid, conversion of this fatty acid into the acetyl CoA. Same fatty acid are converted into cholesterol, into phospholipid, and there are increase in the blood lipids। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा,
डायबिटिक लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल इसीलिए ज्यादा होता है, इसलिए हाइपरटेंसिव होते हैं, इसलिए उनको एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेज होती हैं, हाइपरटेंशन भी होती है, सीवीएस भी होते हैं, उनको हार्ट अटैक्स भी होते हैं डायबिटिक लोगों को, बिकॉज ऑफ दिस increase free fatty acid level. Because of this, fatty acids are converted into this cholesterol, they are converted into phospholipid. This cholesterol is deposited in the intima of the vessel, and that causes what we narrowing of the vessel, atherosclerosis, and that causes increased resistance and increased blood pressure. And complication of increased blood pressure, there are 101 complications of blood pressure. वो कुछ भी कर सकती है, right from the CVA, वो ब्रेन हैमरेज को भी कर सकती है. बट एथेरोस्क्लेरोसिस आल्सो कॉजेज नैरोइंग ऑफ द वेसल्स. नैरोइंग ऑफ द वेसल्स के ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही. नैरोइंग ऑफ द वेसल टू माय फिंगर, ब्लड फ्लो टू फिंगर इज रिड्यूस्ड. नेक्रोसिस विल अकर, फिंगर काटनी पड़ेगी, पांव काटना पड़ेगा, टांग काटनी पड़ेगी. दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फैट मेटाबॉलिज्म. ग्लूकोज ने तो कुछ नहीं किया, वो तो ग्लूकोज पानी यूरिन में लॉस होगी, कुछ भी नहीं हुआ. यहां तो टांग काटनी पड़ गई, एंड हाइपरटेंशन होगी, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया. So atherosclerosis. So this is the grave complication of the fat metabolism deficiency of insulin में. So cholesterol level, phospholipid, increase blood lipoproteins ये बढ़ जाएंगे. So decrease insulin cholesterol बढ़ता है, atherosclerosis करती है, और इसकी lot of complication एक दो तो मैंने लिस्ट कर दिए है ना. ये गैंग्रीन जो होती है, पाँव बाजू एम्पुटेशन करनी पड़ती है, एंड हार्ट अटैक्स जो होते हैं, एंजाइना जो होते हैं, दिस एथेरोस्क्लेरोटिक, अगर कार्नरी वेसल दे आर narrowed, they are atherosclerotic, blood flow to the muscle is reduced and there is angina. अगर ज्यादा कम हो गया, ब्लॉक हो गया, it will cause the heart attack and the myocardial infarction will occur. So these are the complications of the disturbed fat metabolism. So complication of the deficiency of insulin, ज्यादा डेंजरस काम जो है फैट मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस है. ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बहुत से लोग डायबिटिक लोग मरते इससे हैं, कीटोएसिडोसिस से मरते हैं इफ दे आर अनट्रीटेड. वो क्या है, वो हमने ग्रोथ हार्मोन के साथ थोड़ा सा रिलेशन में बात की थी, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा ग्रेव situation है. Decrease insulin causes more free fatty acid level and increase carnitine transport system and increase beta oxidation. ये जरा explanation है, पिछली स्लाइड में हमने डायरेक्टली जंप किया था बीटा ऑक्सीडेशन पे. ये कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी स्टिमुलेट करती है, और फाइनली बीटा ऑक्सीडेशन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए. ये ग्रोथ हार्मोन के साथ भी देखा था. हाई लेवल ऑफ एसिटाइल कोए इज कन्वर्टेड इनटू एसिटोएसिटिक एसिड. Two molecules of acetyl CoA, they are condensed together to form the acetoacetic acid. दो एसिटेट जब मिलेंगे क्या बनेगा, एसिटोएसिटिक एसिड. एंड ये चार कार्बन वाला, दो वाला दो 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 के मिलके चार का, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये भी चार कार्बन वाला, एंड एसीटोन. ये तीन चीजें बनेंगी इस एसिटाइल कोए से. इन तीनों चीजों को हम कहते हैं कीटोन बॉडीज. तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी में देयर इंक्रीज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज, इसको हम कीटोसिस कहते हैं. इन कीटोसिस की वजह से ग्रोथ हार्मोन में भी हमने डिस्कस किया था, देयर में भी एसिडोसिस. इनमें से दो तो एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड. ये दो तो एसिड है. एसिड किस चीज को कहते हैं, विच कैन डोनेट प्रोटॉन, जो डिसोसिएट होके एक हाइड्रोजन आयन दे सकता हो, वो एसिड होता है. तो ये दो तो एसिड है, दो दे आर वीक एसिड, लेकिन एसिड तो है ना, दे विल गिव हाइड्रोजन आयन. लेकिन हम एल्डोस्टेरोन पढ़ चुके हैं. एल्डोस्टेरोन वी हैव डिस्कस एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन का लेक्चर आप याद करें. एल्डोस्टेरोन कॉजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. जब ये कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर मौजूद हों, दे आर लॉस्ट इन द यूरिन वेरी इजीली. इनकी एक्सक्रीशन बहुत आसान है, प्लाज्मा क्लियरेंस की बहुत अच्छी है, ये आसानी से लॉस होते हैं. लेकिन लॉस करते वो करते क्या है, दे आर नॉट एसिड्स, दे कंबाइन विद द सोडियम इन द यूरिन. यूरिन के साथ, यूरिन में जो सोडियम है उसके साथ कंबाइन करते हैं. व्हेन दे आर लॉस्ट इन द यूरिन, सोडियम इज आल्सो लॉस्ट. सोडियम लॉस का मतलब क्या हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सिक्रीशन जो होनी थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम शुड रिजल्ट इनटू द एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन. दिस सोडियम इज नॉट अलाउड इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कीटो एसिड्स इन द यूरिन. तो इसलिए हाइड्रोजन आयंस विल accumulate and it will cause the acidosis. So these
एसिडोसिस, इंसुलिन काजेस कीटोसिस एंड कीटोसिस काजेस एसिडोसिस। ये हमने थोड़े से मैकेनिज्म भी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज अगेन वेरी ग्रेव कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन में ये एसिडोसिस हो, कीटोसिस, इसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं। बहुत से डायबिटिक लोग इससे मरते हैं। और ये डायबिटिक कोमा में जब आपके लोग आते हैं ना, ये एसीटोन एसीटोन की बड़ी स्वीट स्मेल होती है, सूंघने में स्वीट स्मेल होती है, ए वोलेटाइल है। वो डायबिटिक, वो बेहोश आदमी होता है, उसकी एसीटोन ब्रेथ में आ रही होती है तो उसके करीब से खुशबू आती है। डायबिटिक कोमा वाले बंदे से खुशबू आती है। ये एसीटोन जो लड़कियां जानती होंगी, उनके जो नेल पॉलिश की जो स्मेल होती है, दैट इज एसीटोन। So this acetone smell is present in the diabetic coma because of this. So कीटोसिस एसिडोसिस डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है एल्डोस्टेरोन के मैकेनिज्म से, इनडायरेक्ट थ्रू द एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को रोकती है, रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन आयन करती है व्हेन कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन द यूरिन, सोडियम का लॉस करती है। सो इफेक्ट्स ऑफ रिमूवल ऑफ द पेनक्रियाज, ये डायग्राम आपको बता रही है जब इंसुलिन नहीं होगी, जब डायबिटिक लोग होंगे या तो उसमें क्या होगा, दैट इज एसिटोएसिटिक एसिड लेवल का, दिस इज कीटोन बॉडीज, उसका लेवल देखें। रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज का ये दिन है, डे 1 पे हमने किया है और 3-4 दिन में उसका लेवल कहां से कहां पहुंच गया। और इसी तरह उसका फैटी एसिड का लेवल, फ्री फैटी एसिड लेवल का लेवल, वो क्यों, एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैट, हमने पढ़ चुके हैं, फैटी एसिड लेवल का भी बढ़ गया। ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगा ही, वो तो हमें वो तो लेमैन को भी पता है कि इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा। बट मोर कॉम्प्लिकेटेड एरिया ये है, दैट इज दी एसीटोन बॉडीज भी, कीटोन बॉडीज भी ज्यादा होंगी, फ्री फैटी एसिड भी लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा होगा। बस आखिरी 2 स्लाइडें इसमें। प्रोटीन, पहली स्लाइड में हमने कहा था कि एनर्जी एक्सेस में इट काजेज डिपोजिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन को भी डिपॉजिट करेगी। So insulin causes increased protein deposition, effect similar to growth hormone. उसी तरह it causes more transport of amino acid into blood, more translation process, more transcription process, less catabolism. वही 4 इफेक्ट इसके भी हैं। So this is the increased transport of amino acid into the cell. Valine, leucine, isoleucine, tyrosine, phenylalanine, ये 5 अमाइनो एसिड, 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 अमाइनो एसिड स्पेशली दे रिक्वायर इंसुलिन फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, तो ये चाहिए। तो इंक्रीज ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए एंड इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द डीएनए, आरएनए का बनना, एंड ऑल दिस विल लीड टू द इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन विल बी डिपॉजिटेड और डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन। ये सारे इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन वाले हैं, वैसे ही इफेक्ट है। एंड इन द लिवर इंसुलिन काजेज डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम द अमाइनो एसिड। ये क्या है, ये क्यों डाल दिया, इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकती है, क्या मतलब, अमाइनो एसिड को बचा रही है, वरना तो अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते, अमाइनो एसिड को बचा के इस काम में लगा रही है। सो इट काजेज द डिपोजिशन ऑफ द अमाइनो एसिड। बोथ इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये ग्रोथ हार्मोन में भी जिक्र किया था, यहाँ डायग्राम में देख लें, इंसुलिन, डायग्राम आगे आ रही है, इंसुलिन डिक्रीज इंसुलिन काजेज डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, अपोजिट हो गया ना, डायबिटिक लोगों में डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड स्टॉपेज ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी अगर इंसुलिन नहीं होगी, एंड मोर कन्वर्शन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहेगा, कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, मसल वीक हो जाएंगे, डायबिटिक लोगों में ऐसे होता है, एंड दी डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्यादा होगी, ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं होगी, ये इस्तेमाल होगी, एंड देयर विल बी मोर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया यूरिन में, क्योंकि प्रोटीन की डिग्रेडेशन जितनी होगी उतना यूरिया भी बनता है, तो जनरलाइज प्रोटीन वेस्टिंग होगी इन डायबिटिक लोगों में। अब ये डायग्राम आखिरी देख, डिरेंज ऑर्गेनिक एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, ये क्यों, प्रोटीन सारी बॉडी में चाहिए, बॉडी के प्रोटीन खराब हो रहे हैं कि सारी बॉडी के फंक्शन भी खराब होंगे, मसल भी वीक होंगे, बोन्स भी खराब होंगी, जीआईटी भी खराब होगी, बाकी डिरेंज होगा। और आखिरी ये डायग्राम देखने के लिए, इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ये हमने देखा एनिमल में, अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, एक एनिमल का पेनक्रियाज रिमूव कर दिया और पेनक्रियाज रिमूव करने पर हम उसको ग्रोथ उसकी स्टॉप होगी, ये ग्रोथ थी, उसकी स्टॉप होगी, ग्रोथ हार्मोन हमने इस दौरान में ग्रोथ हार्मोन दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा,
ग्रोथ हार्मोन नहीं दिया, सिर्फ इंसुलिन दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दोनों देंगे ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन, देन वी विल ऑब्जर्व इंक्रीज ग्रोथ। ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है कि बोथ हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ टू टेक प्लेस, और उसकी रीजन ये है प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड बोथ growth hormone and the insulin hormone. So those were the functions of this effects of insulin on the fats and protein metabolism. और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला, हमने इन डाइटरी सब्सटेंसेस पर फंक्शन देख ली है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे हाउ दिस इंसुलिन इज रेगुलेटेड, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन और कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ दिस इंसुलिन। नेक्स्ट लेक्चर होगा और उम्मीद है समझ आई होगी। If you have got some queries, questions, you can ask in the comment section, and please do share my this videos to other students, other friends, and subscribe भी कर दें, तो ये सदका जारिया आपका भी होगा और हमारा भी होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।